Hello students. Hello students. How are you? I hope you are fine at your home and following the lockdown rules. Now today I am again back with a new topic related to single phase induction motor. Now we must understand the theory, that is double revolving field theory. That is quite important to understand before understanding the types of induction motor. Okay, now starting with the double revolving field theory, I'm just drawing a simple diagram. Okay, this is the stator part. Okay, stator winding represented by stator, and this is the single phase supply we have given. From here we have given the supply. This is the rotor. Okay, this is the rotating part of the machine. This is the stationary part, stator, rotor, shaft. Now what happening is, when we give supply to the stator, or you can say the main winding, when you give supply, when single phase supply, okay, is given to main winding, okay, then what happen? A pulsating, revolving flux develop between, you can say, stator and rotor, between stator and rotor. Now in order to understand this revolving field of flux, just take an example of this. Phi is equal to phi m sine omega t and sine cos phi naught. Okay, now what you have to do is, we have to take two components. One is a back component, another is a forward component. How it will come? Divide by 2 and multiply by 2. Now what will happen? We know the formula for 2 sin A cos A. It is, the formula is 2 sin A cos B sin A plus B plus sin A minus B. Okay, now apply the formula. That is sin A, this is A, this is B. A plus B sin A minus B. Okay, now there are two components. Now if you see, plus phi naught plus 1 by 2 sin minus phi naught. One is this component, another is this component. Now it's having two components. One is backward rotating flux. This is backward rotating flux or field, you can say. This is forward rotating flux. It will be like this. This is backward rotating flux and this is फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स. तो हम ये समझ सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे, मतलब एक तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग का मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं. एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं. ओके, ये एक आपका बना दिया आपने ग्राफ. ऐसे ही दूसरा बना रहे हैं आप.
ओके, तो देखिए जब पॉजिटिव है साइकिल तो ये फॉरवर्ड फ्लक्स है, ओके, जो कि आपका रोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा ये, तो ये एक्टिव होगा तो बैकवर्ड फ्लक्स होगा, ये फिर से फॉरवर्ड, ये फिर से बैकवर्ड। तो क्या कह सकते हैं हम, डबल, इट इज डबल फ्लक्स, डबल रिवॉल्विंग फील्ड। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड है, एक तरफ वो उसको बैकवर्ड की तरफ लेके जा रही है रोटर को, एक तरफ फॉरवर्ड की तरफ। तो मोटर आपकी किस तरफ रोटेट करे, ये कैसे होगा, इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। या तो इसको मैन्युअली रोटेट करेंगे, या हम इसके लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। अब मैन्युअली कैसे रोटेट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे जो फैन है वो बंद हो गया, अब उस फैन को क्या करते हैं, अगर हम मैकेनिक को बुलाएंगे वो टाइम लगाएगा आने में, तो आप क्या करेंगे, डंडे से कई बार उसको हिलाते हैं तो फैन चल पड़ता है, तो उसको कहते हैं मैनुअली। तो मैनुअली आप जो तो अप्रोचेबल है, जो रोटर आपका आप कह सकते हैं एक्सेसिबल है, जिसके तक आप पहुंच सकते हैं, मैनुअली इसको रोटेट कर सकते हैं, उसको तो आप कर देंगे। ओके, ये पर चलेगा किसमें, जब स्मॉल साइज मोटर होंगी, जब साइज बड़ा हो जाएगा तब ये नहीं पॉसिबल। ओके, इन केस ऑफ बिग साइज ओके रोटर, ये मैनुअली आप नहीं कर सकते। और कहां नहीं कर सकते मैनुअली, जहां पे आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जिस रोटर तक आप पहुंच ही नहीं सकते, आप उसको मैनुअली कैसे स्टार्ट कर देंगे, आप ये बताइए। तो इसलिए हमें स्टार्टर की जरूरत है, एक पुशअप की जरूरत है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करने की जरूरत है। टॉर्क मतलब एक झटका देना, ताकि एक ही डायरेक्शन में रोटेट करे, बजाय कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों, वो एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा जब आप उसको उतनी टॉर्क देंगे। तो ये था मेरा मकसद समझाने का। ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसलिए हम यूज करते हैं इसमें, टू गिव अ स्टार्टिंग टॉर्क, टू गिव अ स्टार्टिंग टॉर्क। Pause. Now we must understand the torque speed characteristic. Okay, as we know the single phase induction motor is not self starting, hence we have to give a starting torque. So that is quite important. Torque speed curve. Now in order to understand the torque speed curve, okay, I'm just drawing the torque speed curve. Done. Now this is the two diagram I have drawn in this case. So this is the, you can say forward, this is the torque upward, this is negative torque. Okay, and the resultant torque I am drawing is, the resultant torque curve will be like this. Okay, so this is the resultant. Done. Now this is the resultant. This is forward revolving field curve, and this is backward revolving field curve. Okay, and this is the starting torque. As we know, it is not the self starting. This torque, that is we have to give before the motor start running. तो इतना टॉर्क हमें देना ही पड़ेगा। ओके, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, और इतना टॉर्क हमें देना पड़ेगा जब इसको रिवर्स डायरेक्शन में आप रोटेट कराएंगे। और स्टार्टिंग में हम सबको पता है। ओके, और ये अगर रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ टॉर्क हमारी क्या है, स्टार्टिंग पे 0 है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। तो अगर हम ये दोबारा से फॉर्मूला में आपको एक बार रिवाइज करा दूं, S इज इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस N अपॉन NS। तो स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड 0 होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, रोटर की स्पीड 0 होती है। जब N हमारा 0 होगा तो S की वैल्यू 1 आएगी। इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि N इज इक्वल टू क्या है, 0, तो स्लिप क्या है, 1। और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ओके, इस पॉइंट पर क्या होगा मेरे पास, जब मेरा टॉर्क 0 आ रहा है, तो मेरी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल आ जाएगा रोटर का स्पीड,
तो स्लिप मेरा क्या होगा 0। तो यहां पे मेरा स्लिप क्या हो जाएगा 0। ओके, तो स्लिप मेरा यहां 0 है और सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल है रोटर की स्पीड। तो जब स्लिप 0 है तो टॉर्क 0 होगा, क्योंकि हमें पता है टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, दैट इज E2 स्क्वायर S R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस S X2 स्क्वायर। तो ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला है, K पे डिपेंड करता है। तो स्लिप 0 है तो टॉर्क भी 0 है यहां पे। तो इसमें एक हमारा बैकवर्ड टॉर्क होगा, ये बैकवर्ड है, और ये क्या है फॉरवर्ड टॉर्क कर्व है। ओके, तो इसलिए हमें स्टार्टर की तो जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज करते हैं। ओके, इसीलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम।